Hello everyone, welcome to Brilliant Classes. Dear students, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इम्पोर्टेंट MCQ. Let's start. Question number 1. The pair of equations y is equal to 0 and y is equal to -7 has नीचे में चार ऑप्शन दिए गए हैं. 1 solution, 2 solutions, infinitely many solutions and no solutions. Dear students, as you can see, जब हम y is equal to 0 का ग्राफ खींचते हैं तो ये x एक्सिस ही होता है और y is equal to -7 का जो ग्राफ होगा वो y के -7 से जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस. अब आप देख सकते हैं दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. Show the pair of equations as no solution. So the right option is option D. Now, question number 2. What do you say about the lines represented by 2x plus y is equal to 3 and 4x plus 2y is equal to 6? Lines are parallel, lines are coincident, lines are intersecting, can't say anything. जब भी हमें लाइंस की पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइंस चेक करनी होती हैं तो सबसे पहले हम जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज को चेक करते हैं. इसमें हम a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 चेक करते हैं. जब हम देखते हैं कि a1 अपॉन में a2 है 2/4, b1 अपॉन में b2 1/2 एंड c1 अपॉन में c2 इज 3/6. जब हम इनको कैंसिल आउट करते हैं 2/4 को तो हमारे पास आता है 1/2 एंड सेम इन केस ऑफ 3/6. इनको कैंसिल आउट करने पर भी 1/2 आता है. तो यहाँ पर तीनों रेशियो इक्वल हैं. शो द लाइंस हैव मैनी solutions and line will be coincident. So B is the correct option. Now question number 3. For what value of k do the equations this and this represent coincident lines? Dear students, हमसे पूछा गया है कि दोनों इक्वेशंस में k की किस वैल्यू के लिए जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं उनकी जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट होंगी. एज यू नो, लाइंस आर कोइंसिडेंट व्हेन द रेशियोज a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2 आर इक्वल. So to find out the value of k, we will put a pair with ratio k. So 3/6 a1 upon में a2 is equal to b1 by b2. So 3/6 is equal to -1 by -k. On solving by cross multiplication, we find k is equal to 2. So the right option is option C. Now question number 4. What do you say about the following pair of linear equations? Dear students, we have given a pair of linear equations into variable and we have to check lines are parallel, consistent equation is inconsistent and coincident. So we will check the ratio of a1 upon में a2 and b1 upon में b2. As you can see, the ratio is not equal. 3/6 is not equal to 2/-4. So the lines have one solution
and line will be, equations will be consistent. So the right option is B. जिन भी पेयर्स ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है उसमें जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, तीनों कोफिशिएंट्स के रेशियोज को चेक करके हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे। एज वी आर सीइंग हियर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। सो द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन D. Now question number 6, if a pair of linear equation is consistent, जब एक equations का pair consistent है, then the lines will be parallel, always coincident, intersecting or coincident, always intersecting। Dear students, जब भी pair of equations consistent होता है तब हमारे पास उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें दो केसेस होते हैं। फर्स्ट, वी मे हैव यूनिक सॉल्यूशन और वी मे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन line will be intersecting, and in case of many solutions lines will be coincident. So the right option is option C. Now question number 7, the value of k for which the system of linear equations this and this is inconsistent। ये हमसे पूछ रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन and line will be parallel when a1 upon में a2 is equal to b1 upon में b2 but not equal to c1 upon में c2। तो from first two order we have 1 by 5 is equal to 2 by k। Here coefficient of x is 1, so a1 upon में a2 is 1 by 5 and b1 upon में b2 is 2 by k। When we cross multiply then k is equal to 10। Dear students, जब सेकेंड इक्वेशन में k की वैल्यू 10 होगी तब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे और ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी। So the right option is option D. Now next question, question number 8, the value of k for which the system of equation has no solution। Dear students, as you know equations has no solution when the ratio is a1 upon में a2 is equal to b1 upon में b2 but not equal to c1 upon में c2। इस केसेस में हम कोफिशिएंट्स की हेल्प से रेशियो चेक करते हैं। जब हम फर्स्ट टू रेशियोज को लेते हैं तो यहां से हमारे पास वैल्यू आती है k इज इक्वल टू 2 और जब हम लास्ट टू पेयर को लेते हैं तो हमारे पास आती है k इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 4। बट इस केस में हमें जो आंसर दिया हुआ है उसमें k की वैल्यू 2 दी हुई है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर विच वैल्यू ऑफ p will the lines represented by
following pair of linear equation be parallel। ये जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इसमें इक्वेशंस की जो लाइन होंगी ग्राफ पर वो पैरेलल कब होंगी, ये हमें बताना है। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, लाइन्स विल बी पैरेलल व्हेन first two ratios are same and third is not same. So we will check b1 upon में b2 minus 1 by minus 2 and c1 upon में c2 minus 5 upon में minus p। On cross multiplying we find out p is not equal to 10। तो जिस केस में p 10 नहीं होगा वो ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। सो द वैल्यू ऑफ p शुड बी एक्सेप्ट 10। इट मीन्स 10 को छोड़कर कोई और वैल्यू जब आएगी तो इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो पैरेलल होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ 3x plus 4y रेशियो x plus 2y is equal to 9/4, then 3x plus 5y ratio 3x minus y is equal to। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम जो रेशियो हमें गिवन है उसको यूज करेंगे। जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सोल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 2/3y। अब ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 2/3y, ये हम सेकंड इक्वेशन सेकंड रेशियो में पुट कर देते हैं। 3x, यहाँ x की जगह हम पुट करेंगे 2/3, x की जगह यहाँ पर भी पुट करेंगे 2/3y। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है और ये हमारे पास बचता है 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 7y और नीचे आता है 3y माइनस में y, दैट इज नीचे हमारे पास आता है 2y, 3 से 3 कैंसिल आउट होता है और ये हमारे पास आता है 2y माइनस में y, दैट इज y। सो y से y कैंसिल आउट हो जाता है और आंसर आता है 7/1। सो रेशियो बिकम्स 7:1। So C is the correct option. Thanks for watching. Please subscribe, like and share.